Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGUI. So today we will be starting new chapter, that is ratio and proportion. This is continuously your third year when you are studying the same chapter. That means you have started this in class 6, you have read this in class 7th and now in class 8 as well. So there are certain things which gets updated. Rest of the things are the same. That means कि जो उसका basic structure है that is always the same. You all are very much aware about what is ratio, isn't it? When we compare two things which are in same unit and we can also write them in the form of fraction, then that is termed to be as ratio. For example, if I am writing that height of a boy is 150 centimeter and height of another boy is 175 centimeter. Okay, then what we can clearly see that this boy is shorter and this boy is taller, isn't it? So when these things are written in the form of fraction, for example 150 upon 175, then this is termed to be as ratio, and this can also be written in the form of 150 ratio 175. The thing is, whenever we are writing anything in the form of ratio, the thing which we should keep in mind that रेशियो शुड बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. मतलब कि जो रेशियो हो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए. तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम 25 से अगर डिवाइड करें दोनों तरफ, तो यहाँ से 6 मिलेगा और यहाँ से 7. देयरफॉर वी कैन से दैट द सिंप्लीफाइड रेशियो ऑफ दिस वुड बी 6 रेशियो 7, एंड देन अगेन इट कुड बी रिटन एज 6/7. ओके, so this is the general structure or the basic structure of ratio. Next thing is, if we ever multiply the ratio by any non-zero number, then its value remains unchanged. Why? Suppose I am writing 2 here and 5 here, then the ratio is 2/5. और अगर हम इस रेशियो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से या नॉन जीरो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 5 से करेंगे और यहाँ से 5 से करेंगे, तो ये बन जाएगा 10 एंड दिस विल बी 25. तो इसको रिड्यूस करेंगे तो फिर से ये 2/5 ही हो जाएगा. देयरफॉर वी कैन से दैट whenever we multiply or divide any ratio by the given or any kind of non-zero integer, then the ratio is unchanged, है ना. तो इसको जब हम लोग थ्योरी के पार्ट में लिख देते हैं तो a/b अगर एक रेशियो था, उसको हमने अगर मान लो m से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो इसके रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा और ये हमेशा a रेशियो b ही रहेगा. ठीक है, तो दिस इज वेरी स्मॉल काइंड ऑफ थिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल यू. दूसरी चीज ये है कि हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को लिखना है. इसका मतलब है कि उसको रिड्यूस करना है जब तक कि वो रिड्यूस हो रहा हो, या एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि तब तक डिवाइड करना है, तब तक रिड्यूस करना है जब तक कि उन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो 1 ना हो जाए. HCF 1 ना हो जाएगा मतलब ये है कि दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचना चाहिए. दैट्स वेरी ऑब्वियस. अगर वो पूरी तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है तो उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा होगा. दैट्स इट. ओके, नाउ वन मोर थिंग, जब भी कोई रेशियो लिखते हैं, सपोज a रेशियो b लिखा है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. This is not a big deal. You have been learning this from class 6. So the first part is called antecedent and the later part is called consequent. Okay, so this was the basic idea behind this chapter, ratio. Now we will be understanding the things from the questions. So let's start exercise 9A. Exercise 9A. Question number 1 is saying that you have to reduce the ratios in the simplest form. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का दो पार्ट में बता दे रहा हूँ आपको. I am telling you part number 1 and part number 6. ठीक है, question number 1, part number 1. Here you have to reduce the ratio into simplest form. This is a very easy kind of thing. It is given 18:30. ठीक है, this could be written as 18/30, and we know that HCF of 18 and 30 is 6. तो दोनों नंबर को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 3 is 18 and 6 5 is 30. The ratio will become 3/5. That means the simplest ratio of 18:30 is 3/5, है ना. This is not a big deal. आप अपने आप भी इसको आराम से कर सकते हो. नाउ लेट्स सी पार्ट नंबर 6.
In part number 6, ratio are 3 whole 1 upon 5, 3 whole 1 upon 5 ratio, 5 whole 1 upon 3, 5 whole 1 upon 3 ratio, 6 whole 2 upon 3, 6 whole 2 upon 3. ठीक है. So first of all, what we will be doing, we will be changing or converting these mixed fractions into improper fractions. This will be 5 to the 15 plus 1, 16 upon 5 ratio, 15 plus 1, 16 upon 5 again, and this is here 18 plus 2, 20 upon 3. ठीक है. बट ये तो सिंपल रेशियो है नहीं, ये तो फ्रैक्शनल रेशियो है, तो क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर्स को हमको हटाना पड़ेगा. उसके लिए हमको इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा. तो एलसीएम ऑफ 5, 5 एंड 3 कितना आएगा, ऑफ कोर्स 15 आएगा. सो इस एलसीएम से ही सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे. वी विल गेट 16 अपॉन 5 इंटू 15 रेशियो 16 अपॉन 5 इंटू 15, सॉरी 16 अपॉन 3 है ना, 16 अपॉन 3. So it will be multiply 15 ratio this 20 upon 3 multiply by 15. Okay. Now 5 on the 5, 3 the 15, 3 on the 3, 5 the 15, 3 on the 3 and 5 the 15. This will be 16 3 the 48. Ratio 16 5 is 80. Ratio 12 5 is 25 is 100. ठीक है. तो रेशियो आ गया, सिंप्लीफाइड रेशियो 48 रेशियो 80 रेशियो 100. ओके. नाउ हमको इसको रिड्यूस करना है इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इसके एचसीएफ से डिवाइड करना पड़ेगा. आपको पहले से ही पता है. तो 48 80 और 100 का एचसीएफ कितना होगा ये आपको देखना पड़ेगा. ठीक है. तो आई होप द एचसीएफ ऑफ 48 80 एंड 100 कुड बी एनीथिंग व्हिच इज द फैक्टर ऑफ 48. चाहे तो आप अलग से उसके एचसीएफ को कैलकुलेट भी कर सकते हैं. So how much I can see the HCF would be around I think 4 है ना, 4 HCF होगा इसका. 4 से डिवाइड करेंगे, this will be 4 1 the 4 and 4 2 the 8 ratio. This will be 4 2 the 8 20 ratio, 4 2 the 8 and 25 है ना. तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि 12 20 और 25 रिड्यूस्ड रेशियो आ गया. इसको फर्दर आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो. ठीक है. क्योंकि 12 20 और 25 के बीच में कोई भी अब कॉमन फैक्टर नहीं है. 20 और 25 के बीच में तो कॉमन फैक्टर 5 है, बट तीनों में के बीच में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, उसी से ये डिवाइड होगा. देयरफॉर 12 रेशियो 20 रेशियो 25 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. All the other parts of question number 1 I want you to solve them by your own, because this is not the first time you are studying all this. You have already done these questions in your last classes. Now moving to question number 2. Again you have to express into simplest form, but यहाँ पे कुछ यूनिट्स दे दी गई हैं. आप जानते हो रेशियो जो होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूनिट में हो सकता है. ठीक है. तो आई विल टेक 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ हियर. पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट को. फर्स्ट पार्ट इज 75 पैसे रेशियो 4 रुपीज. 75 पैसे रेशियो 4 रुपीज. ठीक है. ये पैसे में है, ये रुपीज में अलग टर्म्स हैं, तो हम लोग रुपीज को पैसे में चेंज कर लेंगे. वी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. देयरफॉर 4 रुपी विल बी इक्वल टू 400 पैसा. ओके. नाउ न्यू क्वेश्चन विल बी 75 पैसा रेशियो 400 पैसा. ठीक है. दिस विल बी रिटन एज 75 अपॉन 400. 25 3 जा एचसीएफ दोनों 25 ही आएगा, एंड 25 16 जा. सो आंसर वुड बी 3 रेशियो 16, जो कि एक सिंपलेस्ट रेशियो है इस वाले क्वेश्चन में. ठीक है. तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. ठीक है. नाउ लेट्स सी वन मोर. लेट्स सी पार्ट नंबर 4 है ना. पार्ट नंबर 5 में आप सबको मंथ में चेंज करके सॉल्व कर सकते हो, दैट्स नॉट बिग डील. पार्ट नंबर 4 इज 2 kg 750 ग्राम
रेशियो 3 kg, ठीक है 3 kg। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे टर्म को ही ग्राम्स में, इसको भी ग्राम्स में और इसको भी ग्राम्स में चेंज कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो 2 kg 2000 और 2000 प्लस 750 कितना हो जाएगा 2750 ग्राम्स। रेशियो 3 kg में 3000 ग्राम्स हो जाएंगे। सो दिस विल बी द फाइनल थिंग। नाउ वी हैव टू रिड्यूस इट, वी विल बी राइटिंग 2750 अपॉन 3000। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से 0 एलिमिनेट कर देंगे। नाउ 25 इज द एचसीएफ ऑफ बोथ ऑफ थिंग, पूरा से डिवाइड करेंगे। So this will give us 25 12s are 300 and 25 11s are 300. So this will give us 11 ratio 12, and this is the simplified or simplest ratio of this part number 4, question number 2. Okay, so this is how you can attempt all the other parts of question number 2 as well. Now moving to question number 3. Question number 3 is saying that you have to tell which of the given ratios are greater. कौन सा रेशियो जो है वो यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। चलो आई विल सॉल्विंग, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। दिस इज वेरी इजी काइंड ऑफ थिंग दिख रहा है मुझे। दिस इज 4/9 और 3/7। इट इज सेइंग 4 रेशियो 9 बड़ा है, आपको बताना है, या फिर और इट इज सेइंग 3 रेशियो 7, ठीक है। यू हैव टू टेल which of these ratio is greater, ठीक है। So this could be written as 4/9 or this could be written as 3/7. First of all हम क्या करेंगे, इन दोनों का LCM लेंगे। तो LCM of 9 and 7, this will be 7 minus 7 9 is 63, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इसका मतलब जो LCM आएगा वो 63 आएगा। लेके देख लेंगे आप, ठीक है ना। अब हमको इसको भी, इसके डिनोमिनेटर को 63 बनाना है और इसके डिनोमिनेटर को भी 63 बनाना है। कैसे करेंगे, 4/9, 9 में मल्टीप्लाई कर दे 7 का, 63 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई, ताकि रेशियो पहले जैसा बना रहे, ठीक है। मैंने बताया ना, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे रेशियो में कोई चेंज नहीं आता, बशर्ते वो नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। और दिस इज 3/7, इसको भी 63 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, यहाँ 9 से तो न्यूमरेटर में भी 9 से, ओके। दिस विल बी 7 4 जा 28 अपॉन 63, और यू कैन से दिस विल बी 9 3 27 अपॉन 63। डिनोमिनेटर सेम है, कौन सा बड़ा वैल्यू है, दिस इज द ग्रेटर वैल्यू, हेंस यू कैन से दैट 7/9 जो है दैट इज ग्रेटर देन 3/7। You can say that 7/9 is greater than 3/7, okay। चलिए एक पार्ट और बता देता हूं मैं। Let's see part number 4. Part number 4 is saying 3 whole 1/3 ratio 4 whole 1/5 और 0.9 रेशियो 10, 0.9 रेशियो 1 है शायद 1, ठीक है ना। इसको चेंज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रॉपर में, तो दिस विल बिकम 10/3 रेशियो 20/5 and this will become 0.9 और रेशियो का मतलब होता है अपॉन, तो अपॉन 1 आ गया, ये इसका डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब होता है अपॉन, तो क्या कर सकते हैं 10/3 अपॉन दिस विल बिकम 20/5, ठीक है। दिस विल बिकम 10/3 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5 ऊपर आएगा 20 नीचे, ठीक है। 10 1 10, 10 2 20, दिस विल बिकम 5/6। यहाँ से 5/6 आया और यहाँ से आया और 9/10। अब वही प्रोसेस करना है हमको, इन दोनों का एलसीएम लेना है।
LCM ऑफ 6 and 10, ठीक है। 6 और 10 का आप LCM लोगे तो 30 आएगा, दिस विल बिकम 30, ठीक है। आगे का स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको भी 30 क्रिएट करना है, इसको भी 30 बनाना है, तो 5/6 6 मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 30 बनेगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हियर 9/10 10 को 30 बनाने की 33 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी तो 3 से मल्टीप्लाई, तो दिस विल बिकम 25/30 and this will become 27/30। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो सेकंड पार्ट बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि 3 होल 1/3 रेशियो 4 होल 1/5 जो है वो छोटा है 0.9 रेशियो 1 से, ठीक है। तो ये बड़ा है रेशियो और ये रेशियो स्मॉलर है। कैसे किया? आई हैव क्लियरली शोन यू हियर हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, ठीक है। Now question number 3 is saying, question number 4 is saying arrange the following ratios in ascending order। तो इसके लिए आपको question number 3 वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, कोई बिग डील नहीं है, आप question number 3 को अपने आप से करेंगे, है ना, 4 को सॉरी। Now let's move to question number 5, ठीक है। Question number 5 is saying that you have to divide 142.2 rupees between Gagan and Mukesh in the ratio 1/4 ratio 1/5, ठीक है। तो गगन और मुकेश का रेशियो गिवन है, रेशियो इज गिवन दैट इज 1/4 रेशियो 1/5, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो को चेंज करना पड़ेगा, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो इस विल गिव 4 1/4 into 20 रेशियो 1/5 into 20 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना है 20, ठीक है। 4 1 4 4 5 20 5 1 5 and 5 4 20, ठीक है। यहाँ जो रेशियो आ गया वो आ गया 5/4, हम बोल सकते हैं कि गगन रेशियो मुकेश इज 5/4, ठीक है। नाउ मनी कितना डिवाइड करना है, दैट इज 142.2, मनी गिवन है 142.2 रुपीस, ठीक है। तो गगन को कितना मिलेगा, गगन का शेयर या पहले भी करते रहो 7th क्लास में, गगन का रेशियो कितना है 5 अपॉन नीचे लिखते हैं सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो मतलब दोनों रेशियोज का सम, 5 + 4 9 मल्टीप्लाई बाय 142.2, ठीक है। 9 1 9, दिस विल गिव अस 9 1 9 5 2 9 5 45 7 और 2 72 9 8 70, ठीक है। तो 15.8, ठीक है, 15.8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 8 40 0 4 5 5 25 प्लस 4 29 कैरी 2 एंड 5 5 प्लस 2 7, डेसिमल 8 डिजिट के बाद तो 79 जो है वो शेयर है गगन का, ठीक है। तो मुकेश का शेयर कितना होगा, आप एक तरीके कर सकते हो, टोटल कितना डिवाइड करना 142, 142.2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 79 जो कि शेयर किसका था, गगन का था, ठीक है। चाहो तो यही तरीका वहां भी यूज करो 4/9 करके, तो वो भी आंसर वही आएगा ना, इससे भी आंसर वही आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 63.2 रुपीस, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, आंसर आएगा मुकेश जो शेयर है दैट विल बी 63.2 rupees, ठीक है। So this is solution of your question number 5. Similarly question number 6 और 7 भी and 8 भी आप अपने आप से ट्राई करेंगे। तो question number 6 7 and 8 अपने आप से करेंगे, किस तरीके से फ्रैक्शनल रेशियोज को हम लोग सिंपल रेशियो में चेंज करते हैं, ये तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग डिवाइड 747, रुपये जो डिवाइड करनी है मनी वो 747 डिवाइड करनी है, तो मनी टू बी डिवाइडेड इज इक्वल टू ₹747, ठीक है। कंडीशन गिवन है ए बी सी का, कंडीशन है इस तरीके से 4A = 5B = 7C,
गिवन है 4A इज इक्वल टू 5B इज इक्वल टू 7C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें काम करना है वो ये करना है कि A, B और C का रेशियो हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो हम ऐसे में क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि 4A इज इक्वल टू 5B इज इक्वल टू 7C किसके बराबर है, एक कांस्टेंट K के इक्वल है, ठीक है। ये जो वैल्यूज है वो एक कांस्टेंट K के इक्वल है और आपस में सब बराबर हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 4A की वैल्यू जो है वो K के इक्वल है, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K/4 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो 5B है वो भी K के इक्वल है, तो यहाँ से हम लोग B बोल सकते हैं दैट विल बी K/5, ठीक है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं 7C का वैल्यू भी K के इक्वल है, तो C का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा K/7, ठीक है। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं अगर हम A रेशियो B रेशियो C लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6, ठीक है। या आप K भी लिख लो, K डिवाइड हो जाएगा, आप में खत्म हो जाएगा K/7 है, सॉरी K/7 ना, लेमन है, ठीक है ना। फिर से वही तरीका आ गया, इन सबको फ्रैक्शन वाले रेशियो में है, नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए इन सब का एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। 7, 5 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, इन सब के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब है कि एलसीएम होगा इनका प्रोडक्ट, तो 5 4 20, 20 × 7 140, ठीक है। तो 140 इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 140, ठीक है। और जो एलसीएम आता है उसी सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बाकी पार्ट में इधर कर रहा हूँ, तो यहाँ से जाएगा A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 1/4 इंटू 140 रेशियो 1/5 इंटू 140 रेशियो 1/7 इंटू 140, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 and 4 5 जा 20, okay? Now 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 and 5 8 जा 40, पर यहाँ से कुछ और आएगा, 4 3 जा 12 होता है ना, 4 3 12 और 4 5 35 आएगा, ठीक है। 7 से करेंगे तो इट विल बी 7 7 7 14 20 है, तो क्लियरली जो A रेशियो B रेशियो C हो जाएगा दैट विल बी 35 रेशियो 28 रेशियो 20, ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो A का शेयर कितना होगा, A शेयर विल बी इक्वल टू A का जो रेशियो है 35 अपॉन सम ऑफ रेशियो, सबको ऐड करेंगे, 35 प्लस 20 55, 55 प्लस 30 85 83, ठीक है। 83 मल्टीप्लाई बाय कितना डिवाइड करना था, 747, ठीक है। तो 83 1 जा 83 9 जा होता है 747, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो 9 5 जा 45, 5 कैरी 4 एंड 9 3 27, 27 प्लस 4 31, दैट मींस जो A का शेयर है वो ₹315 है, ठीक है। सिमिलरली B का शेयर निकालेंगे, B शेयर विल बी इक्वल टू, B का रेशियो है 28 अपॉन 83 सम ऑफ रेशियो है मल्टीप्लाई बाय 747, डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स होगा, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 में, व्हाट वी विल गेट, 9 8 72, 2 कैरी 7, 9 2 18 और 7 25, तो जो B का शेयर आ जाएगा वो आ जाएगा 252 रुपीस, ठीक है। सिमिलरली का C का शेयर निकालना, तो C शेयर विल बी, C का रेशियो कितना है 20 अपॉन सम ऑफ रेशियो 83, डिवाइड कितना करना था 747, ठीक है। 1 जा 9 जा 9 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो आएगा 180, तो जो शेयर है C का दैट विल बी 180 रुपीस, ठीक है। A का शेयर 315, B का शेयर 252 एंड शेयर ऑफ C विल बी इक्वल टू 180 रुपीस। Now let's see question number 10.
Question number 10 is saying a bag contains 1 rupee, 50 paisa and 25 paisa coins in the ratio 5:6:8 amounting to rupees 210. Find the number of coins of each type. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. तो यहाँ पे जो बैग के अंदर नोट्स कॉइन्स हैं वो 1 रुपी का कॉइन है, 1 रुपी के कॉइन्स हैं, कुछ 50 पैसे कॉइन्स हैं और कुछ 25 पैसे कॉइन्स हैं. ठीक है. इनका जो रेशियो गिवन है दैट इज गिवन 5, 6 एंड 8. इनका रेशियो गिवन है 5, 6 एंड 8. ठीक है. ये तो रुपी में ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग रुपी में चेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा 50/100. तो इसको हम बोल सकते हैं 1/2 रुपी. ठीक है. इसका रेशियो 6 है. इसको अगर चेंज करेंगे तो 25/100 तो ये हो जाएगा 1/4 रुपी. दिस विल बी 1/4 रुपी. ठीक है. नाउ ये रेशियोज गिवन है. एक्चुअल वैल्यूज में पहुंचने के लिए इनमें एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. अगर 5x कॉइन्स हैं, 1 रुपए के 6x कॉइन्स हैं 50 पैसे के और 8x कॉइन्स हैं 25 पैसे के. ठीक है. तो इनसे पैसा बनेगा कितना? 5x मल्टीप्लाई बाय 1 तो इससे तो 5x ही बनेगा. इससे 6x मल्टीप्लाई 1/2 तो हो जाएगा 3x बनेगा. ठीक है. पैसा टोटल पैसा. और 8 मल्टीप्लाई 1/4 मतलब कि यहाँ से 2x बनेगा. और इन सबको ऐड करने पे टोटल मनी कितनी आनी चाहिए? दैट शुड बी कमिंग 210 रुपीस. ठीक है. तो क्लियरली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ठीक है. दिस विल बी 5x plus 3x plus 2x is equal to 210. 5 plus 3 8 plus 2 11x is equal to 210. Pause कीजिए. 11x नहीं 10x होगा. ठीक है. 5 plus 3 8 plus 2 10x. 10x is equal to 210 तो x will be equal to 210/10. That means we can say that जो x की वैल्यू है वो 21 है. ठीक है. हमें अब फाइंड करने हैं कि कितने कॉइन्स हैं. कॉइन्स का रेशियो है 5x 6x और 8x. ठीक है. तो 5 into 21 ये आ जाएगा 1 रुपी कॉइन. इसका मतलब है दिस विल बी इक्वल टू 505 5 10. 105 कॉइन है इसके 1 रुपए वाले. ठीक है. 50 पैसा कॉइन्स इनका रेशियो है 6x 6 मल्टीप्लाई बाय 21. दैट मींस 6 × 6 and 6 × 12 126 कॉइन्स जो है वो 50 पैसा की हैं एंड देन इज 25 पैसा कॉइन्स. ठीक है. तो 25 पैसा के लिए 8x है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 21 तो दिस विल गिव अस 8 1 8 and 8 2 16 168 कॉइन्स जो है वो 25 पैसे की. ठीक है. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10. आई विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 25 in our next class.